جانب سے بہت دل کی گہرائیوں سے ربیع الاول کی مبارکباد آپ لوگوں کو بھی، آپ کی ساری ٹیم کو، اور اسپیشلی ہمارے دیکھنے والوں کو ربیع الاول کی بہت ساری مبارکباد. جزاک اللہ. اچھا بہت سے کوسچنز ہیں، میں میلز شامل کروں گی اور ناظرین کو بھی یہ بتا دوں، آپ چاہیں تو کال کر کے اپنے سوالات ناظرین ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور جتنے بھی وظائف یہاں بتائے جاتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، قرآن پاک کی مختلف سورات اور آیات کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں، لیکن درود پاک اول و آخر ضرور پڑھنا ہے آپ کو 11 مرتبہ، اور اس کے علاوہ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو بھی جان صاحبہ کو بتانی تھی، میں نے بتا دی. اکثر لوگ آپ میرا کام جو ہے بڑا آسان کر دیتی ہیں. تو میں سوالات کا آغاز کر رہی ہوں. پہلا سوال ہمارے پاس موجود ہے ای میل کے ذریعے، اور ناظرین کو بتا دوں صبح بخیر @ARYQTV.tv پر آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور صبح بخیر QTV کے نام سے پیج ہے، فیض آف ARYQTV کے نام سے پیج ہے، وہاں پر بھی اپنے کوسچنز پہنچا سکتے ہیں بی بی جان صاحبہ کے لیے. پہلا سوال ہے جی محمد رضا. السلام علیکم، میرا نام محمد رضا ہے، بھائی کا نام فیاض رضا ہے، میری امی کا نام کبرا بیگم ہے. مجھے اپنے بھائی کی جاب کے بارے میں پوچھنا ہے. بھائی کا نام فیاض اور والدہ کا نام کبرا بیگم. ٹھیک ہے. پوچھنا ہے کہ 2 ایئرس سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں پر جاب نہیں مل رہی ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیجئے، مہربانی ہوگی. بالکل میرے بھائی، آپ کا سوال ہم نے شامل کیا ہے، امید آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور جواب بھی نوٹ کریں گے. اگر مس ہو جائے ناظرین کچھ بھی، کیونکہ ہم اکثر فاسٹ بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں رات 1 سے 3 صبح بخیر صرف اور صرف ARYQTV پر. اور فیاض رضا کے لیے لکھیں آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 8. روزانہ ایک تسبیح پڑھنی ہے تقریباً 70 دن تک. ایک تسبیح 70 دن تک. جی. اس کے علاوہ جو دوسرا سوال ہمارے لیے منتظر ہے، دوسرا سوال ہمارے پاس موجود ہے محمد آشو کا. کہتے ہیں ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی سوال دیکھتے ہیں، سلام آگے نام کیا نکلے. میرا نام معظم ہے، میری مدر کا نام اسرا فاطمہ ہے، اور میری نوکری کے لیے ہی سوال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. نام ہے معظم اور والدہ کا نام ہے اسرا فاطمہ. السلام علیکم یسرا، امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی. مجھے میرے دوست کا پوچھنا ہے، اس کی 3 بار ڈائیورس ہو چکی ہے، اور اب میں چاہتی ہوں یہ جینڈر میں نے چینج کر دیا تھا، چاہتی ہوں کہ اچھا رشتہ آئے، کیونکہ اسے بہت سفر کر لیا ہے اور اب اور بیئر نہیں ہوتا. اس کی امی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کا نام ہے سعدیہ، والدہ کا نام ہے شہناز بی بی. پلیز کوئی ایسی آیت بتا دیجئے جس سے جلد از جلد. ڈیورس 2 مرتبہ ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے. نام کیا ہے ان کا؟ ان کا نام ہے سعدیہ اور والدہ کا نام ہے شہناز بی بی. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے نصیب قدر کھلے. آمین. اللہم آمین. بالکل آمین. اگلا سوال بھی شامل کر لوں. ٹھیک ہے. ہاں، معظم کے لیے لکھ لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37. ٹھیک ہے جی. کتنی مرتبہ؟ یہ روزانہ 90 مرتبہ ان کو پڑھنی ہے، اور تقریباً 70 دن تک. روز 90 مرتبہ 70 دن تک. ٹھیک ہے جی. پہلے والا وظیفہ بھی 70 دن تک ہے، اور آپ ہمیشہ کلیئر کر دیتی ہیں کہ درود شریف لازم ہے اول و آخر. بالکل. اور سعدیہ کا کوشچن ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی شامل کر لوں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا نام ہے حسینہ بانو اور میری امی کا نام ہے فرحہ بانو، اور مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے کہ میں جو بھی اسٹڈی کرتی ہوں. حسینہ بانو. جی حسینہ بانو، والدہ کا نام فرحہ بانو. ٹھیک ہے. کرتی ہوں، میں سب کچھ ایگزام کے ٹائم پر بھول جاتی ہوں. پلیز مجھے اس کے بارے میں بتا دیجئے. یہ بڑا مسئلہ ہے جی ناظرین، ہر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سعدیہ کے لیے میں کالر شامل کر لوں، بی بی جان صاحبہ پھر جواب لیتے ہیں. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عفت ریحان. جی کیا کہیں گی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے شوہر کراچی سے خانہ میں جاب کرتے. کال ڈراپ ہو چکی ہے. میں آپ کو ہوں گے، آپ پھر کال کر سکتے ہیں. شوہر کی جاب نہیں ہے، اس کے لیے شاید کوئی وظیفہ تھا، لیکن نہ شوہر کا نام پتہ چلا نہ ان کی والدہ کا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی بی بی جان صاحبہ. اچھا سعدیہ کے لیے ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. 170 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے ان کو 90 دن تک. 170 مرتبہ 90 دن تک. جی. سیم وظیفہ حسینہ کے لیے ہے جو اپنے پیپرز میں اور اپنی پڑھائی میں تھوڑا سا پریشان ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. حسینہ کے لیے ہے آل عمران کی آیت نمبر 31 170 مرتبہ. اب آپ یہاں پر نوٹ کیجئے گا کہ ان کا معاملہ بالکل اپوزٹ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. ان دونوں کا معاملے میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے، لیکن وظیفہ سیم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ پلیز آپ کسی کا بھی وظیفہ سن کے خود نہ شروع کر لیا کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور کالر کو شامل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خیرپور سے کر رہی ہوں، سندھ سے. ماشاء اللہ. میری بہن نام تو بتا دیجیے.
नजमा तावरी। नजमा साहिबा खुश आमदीद, क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बाजी से ये सवाल था, मेरे जिस्म में मुझे दर्द जो खत्म ही नहीं होता, हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है नजमा साहिबा, अपनी वालदा का नाम बताइए। मेरी वालदा का नाम है अल्लाह जुआई। अल्लाह जुआई। ठीक है जी, आप कौन है जवाब देते? थैंक यू। एक और मेरा सवाल, कहिए कहिए। हेलो जी कहिए। हेलो फरमाइए। हेलो जी, मैं अब एक अपने गांव में, छोटे से गांव है, उसमें नात खानी करती हूँ, लेकिन उसके लिए कोई मसला है? मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन मैं ये कहूंगी माशाल्लाह मिलाद करती हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए मजीद। जी क्या कहेंगी बीवी जान साहिबा? इनके लिए भी सेम ही वजीफा है, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31। ठीक है। रोजाना इनको 33 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पीनी है तकरीबन 90 दिन तक। अब आप ये देखिएगा कि तीनों की सेम आयत निकली और मसाइल तीनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल बरक्स। ठीक है जी, एक और मैं क्वेश्चन शामिल कर रही हूँ नाज़रीन, ये भी हमें ईमेल के जरिए क्वेश्चन पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इकरा एंड माय मदर नेम इज नरगिस। इकरा और वालदा का नाम है नरगिस। हमारे घर में मसाइल खत्म नहीं होते, सबकी लड़ाई और झगड़े रहते हैं। मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती हैं, प्लीज कोई वजीफा बताइए। अपना नाम और वालदा का नाम इन्होंने भेजा है, इकरा और वालदा का नाम नरगिस। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, उसके बाद जब हाजिर होंगे तो आपके मजीद सवालात, ये बहुत सारी ईमेल्स हैं नाज़रीन, ये हम शामिल करने की आज भरपूर कोशिश करेंगे और आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए ना। हमारे साथ मौजूद है इस सेगमेंट में आपकी जानी पहचानी रूहानी रहनुमा मोहतरमा बीवी जान साहिबा, और उम्मीद है नाज़रीन सेगमेंट आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि इस सेगमेंट का मकसद ये है कि हम आपके मुख्तलिफ मसाइल का हल आप तक पहुँचा सकें कुरान पाक की रोशनी में। दुरूद पाक अव्वल आखिर आप खुद पढ़िएगा, याद से भी भूलना नहीं है, और नमाज की पाबंदी भी करनी है, और किसी और का वजीफा अपनी हालत जैसा समझकर अपनाना नहीं है। जैसे हर किसी की दवाई आप नहीं खा सकते, वैसे यहाँ वजीफे में भी सिलसिला है। कॉलर उनको शाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम शुमाइला है, मेरी वालदा का नाम इरशाद बीबी है जी। तो मेरी शादी को 5 साल हो गए, औलाद नहीं है, इसके लिए मुझे वजीफा चाहिए। ठीक है, अपने शौहर का नाम और उनकी वालदा का नाम भी बताइए। मेरे शोहर का नाम आसिफ अली है, उनकी वालदा का नाम हफीजा बीबी है। आबिद और हफीजा? नहीं, आसिफ अली। आतिफ अली। ठीक है जी, हम आपको ऑनर बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ठीक है जी, शुमाइला और इनकी वालदा का नाम शादी हफीजा जी, आतिफ की वालदा का नाम हफीजा। ठीक है जी, हम आपको ऑनर बताते हैं। हमने नाज़रीन वक्फे पर जाने से पहले जो क्वेश्चन शामिल किया था वो था इकरा का। तो इकरा के लिए जो वजीफा बीबी जान साहिबा ने बताया है वो है, इनको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 16 70 मरतबा पढ़नी है 3 महीने तक। इसके अलावा एक और सवाल नाज़रीन ने शामिल किया था मुईन खान का, जिनकी वालदा का नाम मुर्शिदा था और इनका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। इनके लिए भी वजीफा हम पूछ चुके हैं दौरान वक्फा, और वो है सूरह नमल की आयत नंबर 26। आपको पढ़नी है भाई हर नमाज के बाद एक तस्बीह। आइए बढ़ते हैं बीबी जान साहिबा की जानिब। क्या इस सवाल का जवाब हमारे पास आ चुका है? जी बिल्कुल, आतिफ की मिसेस का जो अभी शुमाइला का फोन आया था हमारे पास। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ रोजाना 117 मरतबा पढ़नी है और तकरीबन 3 महीने। रोज 170 मरतबा जी, और 3 महीने तक। ठीक है जी, किसी भी नमाज के बाद ये अपना एक बना लें, ठीक है, रूटीन। ठीक है, और नमाज की पाबंदी की कोशिश करें। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं बीबी जान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? आदला बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी अस्मा, खुश आमदीद, क्या कहेंगी? आदला बात कर रही हूँ। आमना जी, क्या कहेंगी? नहीं, आदला। आदिला, ये सही है? जी आदिला, क्या कहेंगी? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। फरमाइए। वकार नाम है उसका। ठीक है। मेरी अम्मी का नाम है तस्लीम अख्तर। ठीक है जी, क्या मसला है? तकरीबन 4-5 दफा मैट्रिक के इम्तिहान दे चुका है और कामयाबी नहीं हुई है। तो ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगी? और अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। फरमाइए। अम्मी का नाम? तस्लीम अख्तर। ठीक है जी, क्या पूछेंगी? और उनकी वालदा का नाम है सुगरा बीबी। ठीक है जी। उनके लिए ये पूछना था कि उनके जोड़ों में दर्द काफी ज्यादा होती है, दवाइयाँ भी ले रही हैं। ठीक है जी, आपको और जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे वकार की अम्मी का नाम समझ में नहीं आया स्टिल। तस्लीम अख्तर। तस्लीम अख्तर, और तस्लीम अख्तर ही इनकी वालदा है, और उनका भी सवाल है तबीयत के हवाले से, सुगरा उनकी वालदा का नाम है। ये भी एक सवाल हमारी कॉलर का है नाज़रीन, आप भी बजरिया कॉल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी मसला, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसका जवाब आप तक पहुंचा दें। अगर आप फेसबुक पर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, वहाँ कमेंट करते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं,
तो सुबह खैर QTV पर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फैंस ऑफ ARYQTV.tv। एक और मैसेज शामिल कर लूँ नाज़रीन, हमारे रेगुलर व्यूवर रिहान रज़ा मेमन का मैसेज नाज़रीन आज भी हमारे पास मौजूद है हमेशा की तरह, तो बहुत शुक्रिया रिहान भाई, आज भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास हसन का मैसेज है, बहुत शुक्रिया हसन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आमना का भी मैसेज है। आमना कहती है मैंने प्रोग्राम नया नया देखना शुरू किया है और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगा कि मैंने पिछले प्रोग्राम्स को निकाल के देखा है बाकायदा, माशाल्लाह। तो नाज़रीन इससे साबित ये होता है कि आप चाहे तो हमारे पेज पर जाके हमारे पिछले प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। बिल्कुल। रजिया इस्लामाबाद, पहले कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी रजिया साहबा क्या कहेंगी? हाँ, मेरे हस्बैंड का प्रॉब्लम है, उनका नाम है मोहम्मद नईम ठीक, और उनकी वालदा का नाम है मरियम बीबी। ठीक है जी, वो डॉक्टर हैं, सही, लेकिन वो कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं, प्रॉपर करते नहीं है काम। ठीक है जी, मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम है सही जी। वही चाह रही कोई वो जो मेरे लिए भी बेहतरी हो जाए। जी अपना नाम और वालदा का नाम बताइए। जल्दी से पढ़ती हूँ, बड़ी कोशिश करती हूँ। अपना और अपनी वालदा का नाम बताइए। वालदा का नाम फातिमा। ठीक है, और आपका नाम राजिया। ठीक है जी, हम आपको ऑनर जा देते। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी राजिया, जी, उनका मसला क्या था? रजिया नाम है, राजिया रजिया, रजिया नाम है, और फातिमा वालदा का नाम, और इनका मसला है तबीयत के ही हवाले से, ठीक है। सेहत के हवाले से। अच्छा, और मोहम्मद तस्लीम के लिए लिख लें आप, जी फरमाइए। जो जिनकी घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों जी, में जी, दर्द जी, रहता जी। है, सूरह गाशिया रोजाना 11 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पीनी है। 11 मरतबा जी, और सूरह गाशिया 33 मरतबा तेल पे दम करके वो तेल की मालिश करें। अच्छा, 33 मरतबा पढ़कर जी। तेल पर दम करना है। तेल और एक ही मरतबा दम करना है, पानी रोजाना दम करना है। ये 3 महीने का है प्रोसेस। अच्छा 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 अच्छा, सही, मतलब 3 महीने तक वही तेल इस्तेमाल करें। जी। अच्छा, मतलब अगर खत्म हो गया दूसरा दम कर लें। सही। और अगला सवाल अच्छा, है ठीक हमारे पास रजिया इसके साथ ही था, नहीं इसके साथ था वकार का। जी जी, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 5 313 मरतबा 90 दिन तक पढ़नी है। ठीक है, 90 दिन तक। और रजिया की बीमारी का मसला था ना? जी जी बिल्कुल, इसका जवाब लेते हैं, कॉलर को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। रजिया का सेहत का मसला, और इसके अलावा इनके शौहर मोहम्मद नईम जो कि डॉक्टर हैं, और उनका इसी हवाले से था कि प्रोफेशनल नहीं है, काम छोड़ दिया करते हैं। जी अच्छा, ठीक है। उनका नाम क्या बताया? मरियम बीबी इनकी वालदा का नाम, और शौहर का नाम है मोहम्मद नईम। अच्छा, मोहम्मद नईम, सही। और रजिया और उनकी वालदा का नाम फातिमा। ठीक है। रजिया और उनकी वालदा का नाम जो बीमारी के हवाले से, सूरह आले इमरान आयत नंबर 16 आल इमरान आयत नंबर 16 170 मरतबा रोजाना पढ़नी है। और मोहम्मद नईम के लिए ये है कि उनकी जो मिसेज है मरियम, ठीक ठीक, सूरह कसस पढ़ें। सूरह कसस, ठीक है जी, और ये तकरीबन 21 दिन तक रोजाना पढ़ें। ठीक है जी। ये इनकी ज़ौजा ने पढ़नी है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। तो रजिया साहब आपको सूरह कसस पढ़नी है, और आपका जो अपना मसला था उसके लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 16 170 मरतबा रोजाना। ये थे हमारे आज के सवालात नाज़रीन। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। बहुत से क्वेश्चन सब भी रह गए हैं, मैं नाम शामिल कर लेती हूँ ताकि आपको यकीन हो कि आपके सवालात में मौजूद है। हमारे पास निम्स कदीर का मैसेज है, मोमल बख्त का मैसेज है, सना का, जोया खान का मैसेज है, अस्मा नूर का मैसेज है, फरोज जहान का मैसेज है, और इनमें से बहुत से मैसेजेस नाजरीन हमने लास्ट वीक शामिल किए। जितने रह गए थे वो हमने कोशिश की कि आज कर लें, फिर भी रह गए। माशाल्लाह आप इतनी मोहब्बत करते हैं नाजरीन कि अपने जितने भी मसाइल हैं वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं ताकि हम उनके जवाब दे सकें। थैंक्स टू बीबी जान साहबा। क्या कहेंगे बीबी जान साहबा? किस मामले में? रबीउल अव्वल की क्या खास तैयारी होती है? कुमकुमे लगाई जाती है, झंडा लगाया बिल्कुल, जाता कुमकुमे है। लगाए जाते हैं, और उनकी आमद पे बड़े जोशो खरोश से घर में जो है मेहमानों को बुलाया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है, नात ख्वानी की जाती है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर अल्लाह के दिए हुए रिजिक में से बांटा जाता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, जो कुछ क्या भी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें मौका मिलता है, हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते क्या हैं, बात है, बहुत खूब। क्योंकि ये महीना ऐसा महीना है जश्न का कि मौका है। बिल्कुल। क्या बात है, कुछ कहेंगी अपने नाज़रीन से मैसेज देंगी? बस अपने नाजरीन को यही मैसेज दूंगी कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया उनके प्यार का। जज़ाकल्लाह नाज़रीन, बहुत ही प्यारे अंदाज में हम कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का अख्तिताम। बीबी जान साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। नाज़रीन, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक दुआओं में बेहद याद रखिए, घरों को सजाना शुरू कीजिए, और अपनी गलियों को जिस तरह रोशन कर रहे हैं, सजा रहे हैं, अपने दिलों को भी, अपने दिमाग
کو بھی, اپنی روح کو بھی روشن کیجیے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے. مختلف تھراپیز کی جانب آپ جاتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے مساجز ناظرین آ گئے ہیں. یہ وہ ذکر ہے, یہ وہ پیارا ذکر ہے جو اگر آپ کرتے ہیں, اس میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں تو کیا خوبصورت آپ ہو جاتے ہیں. سوچ ہے آپ کی. اسی بات کے ساتھ ناظرین میں لوں گی آپ سے اجازت. دعاؤں میں رکھیے گا ہمیشہ یاد. ربیع الاول بہت بہت مبارک. فی امان اللہ.